السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں سلما کوثر۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ قومی موسمیاتی تبدیلی اور جنگلی حیات پالیسی سال 2021 کی منظوری۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ماحولیاتی تبدیلی پر کمیٹی کا تیسرا اجلاس۔ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کے باعث پاکستان نے دنیا میں گرین چیمپئن کی حیثیت سے اپنی ساکھ بنائی۔ دنیا ترقی پذیر ملکوں کو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے میں مدد کرے، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر مشاورت کا عمل مکمل۔ نئی تقرری کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر سول اور فوجی قیادت نے یہ ثابت کر دیا کہ ملک کی استحکام، سالمیت اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد اور یکساں ہیں۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ شریف خاندان نے ہمیشہ مخالفین پر بہتان بازی کی، ملکی سلامتی کے اداروں پر حملہ کیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی عدالت میں مریم نواز نے جھوٹ بولا۔ عدالتوں پر حملہ کرنے کے بجائے سوالات کا جواب دیں۔ مریم نواز مقدمات سے بچنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل، وزیر مملکت زرتاج گل اور پارلیمانی سیکرٹری ملیکہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ کون ہوگا نیشنل T20 چیمپئن؟ فیصلہ آج ہوگا۔ دفاعی چیمپئن خیبر پختونخوا اور سینٹرل پنجاب لاہور میں مد مقابل۔ فائنل میچ دیکھیے رات 7:30 بجے سے PTV سپورٹس پر براہ راست۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ یزید بن زرع انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر ہٹا لوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور حضرت میمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی کہ ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں سے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا وہ نابینا نہیں ہیں؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھو گی؟ کیبنٹ آور میں تفصیلات کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی موسمیاتی تبدیلی پالیسی اور قومی جنگلی حیات پالیسی سال 2021 کی منظوری دے دی ہے۔ اسلام آباد میں ماحولیاتی تبدیلی پر وزیر اعظم کی سربراہی میں کمیٹی کے تیسرے اجلاس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی کہ مارگلا کی پہاڑیوں میں خصوصی زونز کو چیتے کے تحفظ کا زون قرار دیا جائے۔ انہوں نے اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر میں جنگلی حیات کے بارے میں انفارمیشن سینٹر قائم کرنے کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کے باعث پاکستان نے دنیا میں
گرین چیمپئن کی حیثیت سے اپنی ساکھ بنائی۔ دنیا ترقی پذیر ملکوں کو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے میں تعاون کرے۔ اسلام آباد میں ماحولیاتی تبدیلی پر وزیر اعظم کمیٹی کے تیسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت نے بلین ٹری سونامی کا منصوبہ شروع کیا اور اب پوری دنیا ہمارے نقش قدم پر عمل پیرا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے حوالے سے پاکستان کے حقیقی اور واضح اقدامات کی معترف ہے۔ وزیر اعظم نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اہداف پر نظر ثانی کرے اور ایسے نئے اہداف تشکیل دیے جائیں جس سے قدرتی ماحول کے تحفظ کو تیز رفتار بنیادوں پر محفوظ بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نیشنل پارکس کا تحفظ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں تربیت یافتہ افرادی قوت کو شامل اور جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جائے۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مختلف وزارتوں کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کو مربوط بنانے کے لیے تھنک ٹینک قائم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے ماحول کے تحفظ اور اس شعبے میں پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کرنے میں معاون خصوصی ملک امین اسلم کے کردار کو سراہا۔ موسمیاتی تبدیلی پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے اجلاس کو قومی سطح پر کیے جانے والے اقدامات، موسمیاتی تبدیلی پالیسی، قومی جنگلی حیات پالیسی اور گرین کلائمیٹ ڈپلومیسی پر بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان نئے ڈی جی ISI کی تقرری پر مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ نئی تقرری کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر سول اور فوجی قیادت نے یہ ثابت کیا کہ ملک کے استحکام، سالمیت اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد اور یکساں ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہے، ملک میں امن کے باعث تجارت فروغ پا رہی ہے۔ کراچی میں پروٹون KD یونٹ پلانٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آٹو موبائل کے شعبے میں مقامی طور پر گاڑیوں کی تیاری خوشائند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی تعلقات میں اصولوں کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار اور اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے ہم دنیا میں اپنی برانڈنگ کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ آپ جیو اکنامک ہب بن رہے ہیں اس ریجن کا۔ تجارت افغانستان کے ساتھ دنیا کی بڑھے گی تو امن کا امکان بڑھ جائے گا۔ سینٹرل ایشین سٹیٹس اس راستے کو بھی دیکھ رہے ہیں جو افغانستان کے ذریعے گوادر کی طرف آتا ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اصل پاکستان دنیا کو نظر آئے۔ اصل پاکستان کے اندر ایک برانڈنگ ہے، آپ کی زبان کاغذ سے زیادہ پختہ ہے۔ یہ برانڈنگ دنیا کے اندر اگر آپ نے مسلمان آئیڈنٹیٹی کے اعتبار سے اسٹیبلش کر لی تو دنیا کو اس بات کی ضرورت ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ کورونا کے خلاف مؤثر حکمت عملی کے ذریعے نہ صرف وبا پر قابو پایا گیا بلکہ کمزور طبقے کو سماجی تحفظ بھی فراہم کیا گیا۔ کورونا کے خلاف ہماری حکمت عملی کی دنیا معترف ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ بینائی سے محروم بچے ٹیکنالوجی کی مدد سے دیگر بچوں کی طرح متحرک ہو سکتے ہیں۔ کراچی میں بینائی سے محروم طلباء کے لیے فٹ بال اسٹیڈیم کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ اسکولوں اور اساتذہ کو بینائی سے محروم بچوں کی تربیت کی ذمہ داری لینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بینائی سے محروم پاکستانی مندوب نے اقوام متحدہ میں ملک کا نام روشن کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ معاشرے میں خصوصی افراد کو مساوی مواقع دینے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ Being blind is similar to intellectual blindness. We are blind to so many things in life. So physical blindness is similar to intellectual blindness, but it can be overcome by tools, by compassion, and by the nation feeling the need that they have to overcome this. So blindness کو تو ایک طرف آپ رکھیں اس معنی کر کے کہ اب سارے ٹولز موجود ہیں۔ ان اسسٹیو ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر بچہ اسکول میں مین سٹریم بچوں کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ انٹلیکچولی سیم ہے۔ کتنا خوبصورت پاکستان ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر آپ نے خود دیکھا، ٹیک پرائیڈ ان پاکستان کے ہماری جو مندوب تھیں انہوں نے بریل سے پڑھ کر وہاں بہترین تقریر کی یونائٹڈ نیشن۔ اب دوسرے پر آ جائیے جو ہیئرنگ ڈسیبلڈ ہیں، مثال کے طور پر ہیئرنگ ڈسیبلڈ کے ساتھ بھی ایک کمیونیکیشن بیریئر ہے صرف، اور وہ کمیونیکیشن بیریئر ہے کہ ساؤنڈ وہاں نہیں ہے، وہاں ویژن ہے۔ تو یہ بھی ایک ویسا ہی بیریئر ہے جس کو بڑی آسانی سے اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر ہیئرنگ ڈسیبلڈ
یہ ان کا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ مشینوں کے پاس کام بڑے آرام سے کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں ساؤنڈ زیادہ ہوتا ہے، تو عام لوگوں کو سٹریس ہوتا ہے، یہ بڑے آرام سے کرتے ہیں اور میں حلفیہ کہتا ہوں، کہتے ہیں بہتر کام کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور نیوزی لینڈ کی وزیر خارجہ ننایا موہوٹا کے درمیان ویڈیو لنک رابطہ ہوا۔ اس موقع پر دو طرفہ تعلقات، علاقائی خصوصاً افغان صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں سلامتی، استحکام اور اجتماعیت کے حامل سیاسی تصفیہ اور انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانوں کو تنہائی کا شکار نہ ہونے دیا جائے۔ پاکستان نے 37 ممالک کے 21,000 باشندوں کو کابل سے محفوظ انخلا میں مدد فراہم کی۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی قابض افواج انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے نیوزی لینڈ کی وزیر خارجہ سے کرکٹ ٹیم کی واپسی کے یک طرفہ فیصلے کا معاملہ بھی اٹھایا اور کہا کہ یک طرفہ فیصلے سے دونوں ممالک میں کرکٹ شائقین کی دل آزاری ہوئی ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر خارجہ نے کابل سے محفوظ انخلا میں مدد فراہمی پر پاکستان کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وفاق کی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ ماضی کے حکمرانوں نے اربوں ڈالرز کے قرضے لے کر بیرون ملک اپنی جائیدادیں بنائیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ 2008 سے 2018 تک 23,000 ارب کا قرضہ لیا گیا۔ یہ پیسہ ملک میں لگانے کے بجائے دبئی اور لندن بھجوا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت رواں سال 12 ارب ڈالرز کا قرض واپس کر رہی ہے۔ مہنگائی کی بنیادی وجہ یہ قرضے ہیں۔ 2008 سے لے کے 2018 تک ہم نے کتنا قرضہ لیا؟ 23,000 ارب روپے۔ اس 23,000 ارب روپیہ وہ کدھر گیا؟ وہ پیسہ ہے جو دبئی، لندن، امریکہ میں انفارچونیٹلی چلا گیا۔ یہ وہ مشکل ہے جس کا ہمیں شکار کیا گیا اور یہ مہنگائی کی وہ بنیادی وجہ ہے جس سے ہم نبرد آزما ہے۔ ہمارے ہاں بہت اپرچونٹی ہے اپنی ایکسپورٹ کو اس میں ویلیو ایڈ کرنے کی۔ اگر پاکستان صرف عرب کنٹریز کو ٹیپ کر لیتا ہے فوڈ مارکیٹ کو اور ہم یہاں پہ اپنی فارمنگ کو ماڈرنائز کر لیں، ہم اپنی یہاں پہ لائف سٹاک کو ماڈرنائز کر لیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی ورلڈ پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان فیڈ کر سکتا ہے۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی نے سی ای او کانفرنس کے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے کے پاس ملک بھر میں 250 بہت قیمتی جائیدادیں ہیں۔ سرمایہ کار اپنے منصوبوں کے ذریعے ان جائیدادوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ML1 سی پیک کا فلیگ شپ پروگرام ہے۔ ML1 کے بعد ML2 اور 3 بھی آئیں گے۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ کرپشن پر قابو پانے کے لیے ریلوے کے مختلف شعبوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے اور مسافر ٹرینوں کے ساتھ فلیٹ پر بھی توجہ دے رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے کہا کہ پاکستان مواقع کی سرزمین ہے۔ یہ ملک تہذیب و ثقافت کا گہوارہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی کا زیادہ حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، جبکہ وسائل کے حوالے سے بھی پاکستان مالا مال ہے۔ زبیر محمود حیات نے کہا کہ ملک میں IT، کمیونیکیشن، ٹیکسٹائل، چاول، سیمنٹ، فٹ بال، پنکھوں اور دیگر مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ گزشتہ 5 سال کے دوران سیاحت کی صنعت نے 300% ترقی کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ مریم نواز اپنے مقدمات سے نظر ہٹانے کے لیے عدالتی نظام اور اداروں کی حیثیت کو مشکوک بنانا چاہتی ہیں۔ میڈیا پر آ کر ہرزہ سرائی کرنے کی بجائے مریم نواز منی ٹریل پیش کریں۔ مزید تفصیل کیا ہے یہ بتائیں گے ملک عمر۔ اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ مریم نواز کی شرانگیز سیاست سے ان کی پارٹی سمیت ملک کا کوئی ادارہ بھی محفوظ نہیں۔ وہ عوام کو گمراہ کرنے کی بجائے اپنے اثاثوں کی تفصیلات پیش کریں۔ ایک سچ ان سے پوچھا جا رہا ہے، ایک دفعہ بولنا ہے اور ہمیشہ کے لیے عدالتوں سے بھی باعزت بری، بلکہ الٹا پوری قوم ہمیں برا بھلا کہے گی۔ اور وہ سچ کیا بولنا ہے؟ ایک کاغذ دینا ہے جو آپ سب کے پاس کرائے پہ گھر ہو تب بھی کرایہ نامہ ہوتا ہے، خریدا ہو تو تب بھی آپ کے پاس رسید ہوتی ہے۔ وہ رسید دینی ہے کہ اپارٹمنٹ یہاں سے خریدے، وہ نہیں بتاتی۔ قطری خط، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ،
कैलबरी फॉन्ट। माहौलियाती तब्दीली की वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान आलमी सियासी मंजरनामे पे अपना असर रसूख रखते हैं। मरियम नवाज महज अपना कद काठ बढ़ाने के लिए उनकी जात को हत्फे तनकीद बनाने का हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नैब अदालतों पे पथराव करने की बजाय उन्हें सवालात के जवाब देने चाहिए। PMLN ने इनको शायद खास टारगेट दिया हुआ है कि आपने लीडरान की पाकिस्तान की और आपने इदारों की तज़हीक करनी है और आपने उनको मिलाइन करना है, यही इस खातून का पोर्टफोलियो है। जब भी इनसे नैब की पेशी के ऊपर सवाल होता है, ये बाकायदा नैब के कोर्ट्स को एक सियासी थिएटर के अंदर जो है वो तब्दील कर देती हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज की सियासत का महवर महज हुसूल इक़्तिदार है। इसके लिए वो मुल्क का हर इदारा कुर्बान कर देने पे भी आमादा नजर आती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नैब ने एज अ इंडिपेंडेंट आज़ाद इदारा कहा कि इस सर्टिफाइड मुजरिम की जो बेल है उसको कैंसिल होना चाहिए। मरियम नवाज का 3 साल से बेल पर होना पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर एक सवालिया निशान है। खातून को बेल की कंसेशन दी जाती है, अच्छा इस्तेमाल किया बेल की कंसेशन का कि नैब के इदारे के ऊपर ही हमला कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वाजे किया कि बदउनवानी के खिलाफ और लूटा हुआ पैसा मुल्क में वापस लाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, खबर दें आपको इस्लामाबाद से, जहां डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम भी तेज कर दिए हैं। इस सिलसिले में हसन तारिक भट्ट ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में डेंगू के मरीजों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ताहम महकमा सेहत के मुताबिक सूरत हाल काबू में है। 1300 प्लस केसेस जो है डायग्नोज हुए डेंगू के। डेंगू की सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है। कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि जिसके अंदर हम पैनिक करें। तमाम के तमाम जो लोग डायग्नोज हो रहे हैं वो एपिडेमोलॉजिकली एंटरटेन हो रहे हैं, उनको हम लोग सर्वेलेंस कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए मच्छरों के खात्मे का स्प्रे समेत मुतादिद इकदाम किए जा रहे हैं। हमारी टीम्स हर एरिया में फ्यूमिगेशन कैंपेन स्टार्ट करके वो उनको डिसइंफेक्ट कर रही हैं डेंगू लार्वा से। आपको पता है डेंगू के कुछ ऐसा लार्वा जो है स्टैगनेंट वाटर, खड़े पानी पे आता है, तो वहाँ पे हम टायर शॉप्स, वर्कशॉप्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स और अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, जिस पे लोगों को खुद बता रहे हैं। जहाँ पे लोग नहीं सुनते उनके खिलाफ हम एक्शन भी लेते हैं। आवाम को भी चाहिए कि डेंगू से बचाव की हिदायत पर अमल करके इस मर्ज के फैलाव को रोकने में इंतजामिया का साथ दें। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कुछ दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जिद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है।
कैबिनेट आवर में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहेंगे। कुछ बात कर रहे थे हम डेंगू के हवाले से। इस्लामाबाद में केसेस 1300 से तजावुज़ कर गए हैं। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी डेंगू ने सर उठाना शुरू किया तो इसके केसेस में बतदरीज इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत की जानिब से इकदाम भी किए जा रहे हैं और अपील भी की जा रही है कि लोग भी इस हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ताहम डेंगू बहुत ही कम मरीज़ों के लिए जानलेवा साबित होता है, लेकिन बहरहाल ये एक जानलेवा मरज़ ज़रूर है जो कि सेहत को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाता है। ज़्यादातर अफराद जो हैं सलमा, उनका ये होता है कि महज नज़ला ज़ुकाम की कैफियत या बुखार, उसके बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। इस वजह से भी बहुत सारे लोग रुजू नहीं करते या फिर अपने डॉक्टर या अपने मौलिद से रब्ता नहीं करते। पाकिस्तान में डेंगू की क्या सूरत हाल है, अलामात क्या हैं, इस हवाले से जानना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और किस वक्त ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत होती है, इसके सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं, जानने के लिए हमने रब्ता किया है डॉक्टर सारिम लोधी साहब से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। फरमाइएगा कि कब बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत होती है, अगर किसी को डेंगू हो गया है तो कैसे पता चलेगा कि ये डेंगू फीवर हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जी सबसे ज़्यादा फिक्रमंद होने की तो ज़रूरत उस वक्त है जब हुआ ही कुछ नहीं है, और उसके बाद जो हो जाए फिर उसकी फिक्र भी करनी चाहिए, ज़ाहिर है। तो टू स्टार्ट विद, जैसे कि हमको सबको ही मालूम है कि कहीं पर भी अगर पानी खड़ा है और ख़ास तौर पे साफ़ पानी खड़ा हुआ है, जैसे बाज़ दफ़ा वो लाहौरी कूलर घर में रखे होते हैं उसमें खड़ा हो जाता है, या गमलों में या टायरों में, तो सबसे ज़्यादा अहम तो बात यह है कि मेक श्योर करें कि हमारे घर में और हमारे अतराफ कहीं पर पानी ना खड़ा हो। दूसरी चीज़ ये कि फ्यूमिगेशन हो रही है आजकल पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर। अगर आपको ज़रा सा भी शक है तो रिलेटेड अथॉरिटीज़ से कहें कि उस एरिया को फ्यूमिगेट करें। तो सबसे पहली एहतियात तो ये है। दूसरी चीज़ ये एहतियात ये आपको मालूम ही है कि ये ब्लड को थिन कर देता है, और ब्लड के जो सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स, ये उनको बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है और कम कर देता है। तो इसमें जैसे आपने कहा कि भी नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार वाले तो सिम्टम्स होते ही हैं, इसमें शदीद कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द और बुखार, जो कि आम तौर पर पैनाडोल या सिंपल टैबलेट से नहीं ठीक हो रहा होता है। दूसरा ये कि अगर किसी एक शख्स को डेंगू है तो वो दूसरे को लग तो नहीं सकता इस तरह से, लेकिन डेंगू के मरीज के ऊपर अगर कोई मच्छर बैठे और उसको काट ले तो वो दूसरे इंसान को काटेगा तो वही मच्छर तो प्रॉब्लम हो सकती है। और जो कहते हैं ना पूरा बॉडी एक है, वो इंसान को किसी काम के लायक नहीं छोड़ता। ठीक है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले तो प्रिवेंशन पे काम करें, उसके बाद ब्लड टेस्ट करवा के मेक श्योर करेंगे अगर किसी को ये सिम्टम्स हैं, और उसके बाद उस पेशेंट को जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचा देना चाहिए। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, हम चूँकि पोस्ट कोविड किसी सिचुएशन में भी हैं, अब चौथी लहर अब कम हो गई है, फिर जो मौसम की तब्दीली है इस वजह से बहुत सारे लोग टाइफाइड का शिकार भी हो रहे हैं। जो टेस्ट किए जाते हैं, जो लेबॉर्ट्रीज़ में ब्लड सैंपल से टेस्ट लिया जाता है, उसमें कोविड की पॉजिटिविटी की रेशो या फिर टाइफाइड की या फिर डेंगू की, ये कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वजह से भी टेस्ट नहीं करवाते, कहीं कोविड पॉजिटिव ही ना आ जाए हमारा, कहीं हमें टाइफाइड पॉजिटिव ना आ जाए, तो ये भी एक ख़तरा या फिर खौफ बहरहाल रहता है मरीजों में। आपने बड़ी अच्छी चीज़ इस पर कही, और अगर जो भी लोग सुन रहे हैं उनको बात ये समझना चाहिए कि इस खौफ में जीना कि कोविड ना आ जाए और टाइफाइड ना आ जाए, डेंगू ना आ जाए, इस खौफ में जीने से बेहतर है कि चीज़ का पता चले ताकि उसका हल निकल सके। एक जो बड़ी आपको कॉमन चीज़ बता दूं, जो कि किसी भी अगर कॉमन इंसान में अगर आप करें तो आपको बहुत हद तक अंदाज़ा हो जा सकता होता है कि इसको डेंगू है भी कि नहीं। एक तो अलामात जैसे हैं नज़ला, बुखार, जुकाम, जिस्म में दर्द, उसके साथ साथ जो आंख के नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जो आंख का एक तो जी वाइट हिस्सा होता है, उसके नीचे एक रेड हिस्सा होता है ना, उस रेड हिस्से को अगर आप थोड़ा सा उंगली से नीचे करके और गौर से देखें तो वो चेरी कलर का बिल्कुल सुर्ख हो जाता है अगर प्लेटलेट बॉडी में कम हो। डेंगू में या मलेरिया में भी हो जाता है, लेकिन डेंगू में तो बिल्कुल लाल हो जाता है। तो अगर ये अलामात हो, जैसे हमारी आपकी बात हुई कि नज़ला, जुकाम, बुखार और जिस्म में दर्द, तो फौरन आंख के निचले वाले हिस्से को चेक करें कि उसमें कितनी सुर्खी है और कंपेयर करें बाकी घर वालों से। अगर उसमें एक बहुत ज़्यादा सुर्खी है तो फिर तो इसका मतलब ये है कि 90% चांसेस है डेंगू है। और इस चीज़ से, जैसे आपने कहा ना भाई, इस चीज़ से नहीं डरना है कि हमारा कोविड निकल आएगा या टाइफाइड निकल आएगा या डेंगू निकल आएगा। देखिए, जो भी चीज़ें निकल आए उसका हल भी तो निकलेगा फिर आगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، جس طرح کووڈ میں ڈائریکٹلی علاج نہیں ہوتا، سمٹمز کا ہوتا ہے، اسی طرح ڈینگی میں ہم لوگ سمٹمز کا علاج کرتے ہیں، کف ہے، فلو ہے، اس کی میڈیسن لیتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو کہ بہت کنسرن کی بھی ہوتی ہے، الارمنگ بھی ہوتی ہے، کہ پلیٹلیٹس ایک دم سے ڈراپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سچویشن میں میڈیسن کیا یوز کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کی میڈیکیشن موجود ہے پراپرلی پاکستان میں؟ اور اگر فروٹس کے ذریعے یا ڈائٹ کے ذریعے اگر اس کو امپروو کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایز سچ تو پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں بھی اس کی کوئی میڈیسن موجود نہیں ہے، لیکن جو ابھی تک آبزرویشن ہے جو کہ کسی ریسرچ سے پروو نہیں ہوئی ہے، وہ پپیتا یا پپیتے کے پتوں کے ایکسٹریکٹ پہ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے اور لوگ یوز بھی کر رہے ہیں اس کو. لیکن ابھی کوئی سائنٹیفکلی پروو نہیں ہوا ہے، لیکن لوگوں نے استعمال کیا ہے، اور چونکہ اس کا کوئی دوسرا ایز سچ علاج نہیں ہے تو اس کا پھر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو اویلیبل ریمیڈیز ہیں مارکیٹ میں، وہ ایکچولی مارکیٹ میں آپ کو سیرپ بھی ایسے مل جائیں گے جو کہ پپیتے کے ایکسٹریکٹ سے بنتے ہیں، تو یو ڈونٹ ہیو ٹو رن اراؤنڈ فار پپیتا. تو یہ چیزیں بہرحال ابھی انڈر ریسرچ ہیں، پروو نہیں ہوئی ہیں، لیکن کوئی اسپیسیفک دوا نہیں ہے جو کہ پلیٹلیٹس کو اٹھا لے. ہاں اگر کسی کے پلیٹلیٹ ڈینجرسلی لو ہو جائیں تو پھر اس کو پلیٹلیٹس کا ہی ٹرانسفیوژن، جیسے بلڈ کا ٹرانسفیوژن ہوتا ہے نا، ویسے ہی پلیٹلیٹس کا ٹرانسفیوژن بھی ہوتا ہے. تو اگر کسی کے ڈینجرسلی لو ہو جائیں تو پلیٹلیٹ کے ٹرانسفیوژن کرنا پڑ سکتا ہے. دوسری ایک جو اہم چیز ہے، دیکھیں ہمارے بزرگ ہمارے گھر موجود ہیں یا ہمارے بچے موجود ہیں جو کہ جوان لوگوں کے کمپیریزن میں کمپیریٹیولی زیادہ ویک ہیں، اور ڈیزیزز بھی ہیں، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو کوئی، تو وہ پہلے ہی بیچارے کسی ڈیزیز سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی بھی سیویئر ڈیزیز ہو جائے تو وہ ان کے لیے اور زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. وہ ایک جیسے ہماری پہلے بھی بات ہوئی کہ جی پریونشن از بیٹر دین کیور. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صارم لودھی صاحب، آپ نے وقت نکالا، پی ٹی وی سے بات کی اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا کہ ڈینگی میں احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی تشخیص ہو رہی ہے تو اس کے علاج کے لیے انتظامات کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ٹیسٹ ہی نہ کروائیں اور اس کی تشخیص کی طرف ہی نہ جائیں. تشخیص بہت ضروری ہے تاکہ علاج کی طرف بڑھا جا سکے. ایک اور مرض کی بات کریں گے. ملک بھر میں کورونا کیسز میں گزشتہ روز کی کمی کے بعد گزشتہ 24 گھنٹے میں کچھ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. ملک بھر میں 1021 نئے کیسز ابھی تک رپورٹ ہو چکے ہیں. 24 گھنٹے میں کرونا وائرس سے مزید 21 افراد جاں بحق ہوئے، جس سے اموات کی مجموعی تعداد 28,173 ہو گئی. این سی او سی کے مطابق 43,578 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے اور کرونا کی شرح 2.34 ریکارڈ کی گئی. ایس او پیز اور ویکسینیشن کو یقینی بنانے کے لیے این سی او سی اور انتظامیہ کی ٹیمز متحرک ہیں. گزشتہ روز پورے ملک میں 9,41,911 افراد کی ویکسینیشن کی گئی. اور 19 اکتوبر کا مہینہ دنیا بھر میں بریسٹ کینسر کی آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد ملک کا پہلا اسپتال ہے جہاں چھاتی کے کینسر کی تشخیص کی مفت سہولت میسر کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے پیمز اسپتال میں قائم بریسٹ کینسر اسکریننگ سینٹر کا دورہ کیا. جدید ٹیکنالوجی سے لیس اس اسکریننگ سینٹر میں میموگرافی ٹیسٹ کی مفت سہولت سمیت خواتین پر مشتمل عملہ بھی موجود ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چھاتی کا کینسر قابل علاج مرض ہے، تاہم اس کی بروقت تشخیص ہی مثبت نتائج کو ممکن بنا سکتی ہے. اور ابھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے عالمی سلامتی سے متعلق تمام ممالک کے تحفظات دور کرنے کے لیے تخفیف اسلحہ کا نیا عالمی نظام وضع کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. پاکستان کے مستقل مندوب خلیل ہاشمی نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی کمیٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تخفیف اسلحہ کا موجودہ عالمی نظام حالت مرگ میں ہے. بڑھتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تخفیف اسلحہ کا نیا نظام ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ سیاسی اور فوجی کشیدگیوں، تصویراتی اختلافات اور جوہری خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستانی مندوب نے کہا کہ بھارت خطے میں علاقائی تسلط کی پالیسی پر گامزن ہے اور روایتی اور جوہری اسلحے کا انبار لگا کر خطرناک نظریات پر عمل پیرا ہے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں امریکہ نے کہا ہے کہ دوحہ میں امریکی وفد اور طالبان کے درمیان بات چیت مفید رہی ہے. واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ مذاکرات میں سیکیورٹی، دہشت گردی اور غیر ملکیوں کے انخلا پر بات ہوئی. خواتین اور بچوں سمیت انسانی حقوق پر تفصیلی بات چیت ہوئی. انہوں نے بتایا کہ امریکی وفد کے علاوہ طالبان سے اتحادی ممالک کے وفود کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. G20 سربراہی اجلاس میں افغانستان کو انسانی امداد کی فوری فراہمی پر بات ہوئی. ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی افغانستان کے مسئلے پر تفصیلی تبادلہ خیال ہو چکا ہے.
नाज़रीन, चीन ने अफगानिस्तान के मसले से निपटने के लिए 4 निकाती तजवीज़ पेश की है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने G20 इजलास से खिताब करते हुए अफगानिस्तान के इंसानी बुनियादों पर इमदाद, जामे हुकूमत के क़याम में ताउन, इंसदार दहशत गर्दी की आलमी कोशिशों और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इज्तिमाई आलमी कोशिशों की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहिए ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली हो। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से ईरान के पार्लिमानी वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर असद कैसर ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात मजहब, अखुवत और हमसायगी के लाजवाल रिश्तों में बंधे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए मुस्लिम ममालिक के माबैन इत्तेहाद ज़रूरी है। पार्लिमानी सफारतकारी और अवामी सतह पर राब्ते दोनों ममालिक के दरमियान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सरबराह ईरानी वफ्द अहमद अमीर इबादी फरहानी ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सत्ताइश है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में कोट लखपत जेल का दौरा किया और सूबे भर की जेलों में कैदियों की सहूलत और उनकी इस्लाह के लिए तारीख साज पैकेज का ऐलान किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि जेलों के 127 साल पुराने कानून को तब्दील किया जा रहा है ताकि कैदियों की मुस्बत अंदाज में तरबियत के ज़रिए उन्हें मुआशरे का फ़ाल शहरी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि कैदियों की इस्लाह के लिए पंजाब हुकूमत ने जेल रिफॉर्म्स प्रोग्राम के लिए अरबों रुपए का खुसूसी पैकेज तरतीब दिया है। जेलों में कैदियों की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखने के साथ साथ उनकी जिस्मानी सेहत के लिए जेलों में जिम और फिटनेस सेंटर कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने अशरा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में क़रत और नात के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले कैदियों में इनामात तकसीम किए। उन्होंने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और कैदियों को दी जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लिया। मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतुल लिल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उसवा हुस्ना को उजागर किया जा रहा है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि इस्लाम मोहब्बत और आज़ादी का मजहब है और इस्लामी तालीमात में गैर मुस्लिमों के हुकूक की पासदारी की खुसूसी तलकीन की गई है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के मजहब की जबरी तब्दीली के बारे में अफवाहें बेबुनियाद हैं। और नाज़रीन, बात करेंगे डॉक्टर हबीब आसिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मजहबी स्कॉलर हैं, आप टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। माह रबीउल अव्वल के हवाले से और इस महीने की बरकत और इस महीने की खुशियाँ जिससे फ़िज़ा भी मुअत्तर रहती है और सभी जानते हैं हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। इसी पर बात करेंगे। सिला रहमी और हुस्न सलूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ये दो वो पहलू हैं जो कि हमें हर जगह दिखाई देते हैं, हर शोबे में दिखाई देते हैं। वो अपने घर के मामलात हों, वो सहाबा इकराम से गुफ्तगू हो, वो बच्चों के साथ हों, वो गैर मुस्लिमों से हो, वो जानवरों के साथ हों। तो ये वो पहलू हैं जो हमें सलमा हर जगह बहुत उजागर दिखाई देते हैं। बिल्कुल, इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए डॉक्टर आसिम हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि किस तरह से हम अपनी अमली ज़िंदगी में उसवा हुस्ना से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, किस तरह हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना कर अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी जिक्र किया गया कि माह रबीउल अव्वल जो है इसमें हर तरफ खुशियों का एक इजहार होता है और उससे एक समा महसूस करते हैं तमाम मुसलमान, तमाम मोमिन। और इसी मुनासिबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस महीने का इंतखाब किया उसे भी हम रबी कहते हैं और रबी अरबी ज़बान में बहार को कहा जाता है। आप देखिए, जब भी मौसम बहार आता है तो उसमें अल्लाह ताला की मखलूक, चाहे वो चरिंद परिंद हों या नबातात और पेड़, खेत खलियान, दरख्त, बागात, फूल, ये सब
खुशबू नगमे बखेरते हैं, गोया कि खुशियों को आपस में बांटते हैं, एक दूसरे में तकसीम करते हैं। तो इसी एतबार से नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का अगर हम जायज़ा लें तो आपने जो मरकज़ी बात हमें सिखाई है वो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो भी नेमत दे रहा है उस नेमत को तकसीम करो, उस नेमत को आपस में बांटो, उस नेमत की कदर करो, उस नेमत का इस्तेमाल सही करते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। तो और उन नेमतों को अगर आदमी एक छोटी सी लिस्ट बनाना चाहे तो सबसे बड़ी नेमत दुनिया के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से माँ बाप मिलते हैं। माँ बाप के बाद फिर उसकी औलाद है, क्योंकि एक इंसान अपनी औलाद से जिस तरह मोहब्बत बिल्कुल मुखलिसाना अंदाज में करता है किसी और से नहीं कर सकता। फिर उसके साथ साथ पास पड़ोस के लोग हैं, फिर अजीज़ व अकारिब हैं, फिर जिनके साथ मिलकर काम किया जाता है, और इसी तरीके से पूरी इंसानियत इस दायरे में सिमट जाती है। तो इस एतबार से जैसे जैसे अल्लाह ताला ने ये रिश्ते बना रखे हैं तो उनकी कुर्बतों को सामने रखते हुए जो जितना करीब है उसके साथ उतना ही ज्यादा अच्छा बर्ताव किया जाए। वालिदैन सबसे ज्यादा करीब हैं, वालिदैन के साथ सबसे अच्छा बर्ताव किया जाए, उनका एहतराम, उनकी इज्जत, उनकी ज़रूरतों का ख्याल। औलाद बहुत ही करीब है, इसलिए औलाद के लिए जहाँ आदमी दिन रात एक करता है तो वहाँ उनकी अच्छी तरबियत, अच्छे अखलाक की फिक्र करना, उन्हें अच्छी बातें सिखाना, उन्हें अच्छा शहरी और अच्छा मुसलमान बनाने के लिए हर वक्त सोचना भी और उसके लिए कोशिश भी करना। इसी तरीके से फिर अजीज़ व अकारिब हैं तो उनमें से जो भी अजीज़, जो भी करीबी किसी मुश्किल में हो तो उसका बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अब जिस मुआशरे में, जिस वक्त में जो दौरे हाजिर के जो तकाजे हैं, अगर इनकी बात की जाए तो अब कुव्वत बर्दाश्त बहुत कम होती जा रही है। बहुत जल्द हम किसी भी तरह से किसी भी शख्स के हवाले से राय भी कायम कर देते हैं और उस राय का इजहार भी कर देते हैं, और किसी की बात को सुनने से पहले ही, बात मुकम्मल होने से पहले ही हम अपना रिएक्शन या रद्द अमल जाहिर कर देते हैं। इस हवाले से लोगों तक वो पैगाम पहुँचाना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हमें मिलता है, हमें हदीस से मिलता है, सुन्नत मुबारका से मिलता है, इस हवाले से असातिज़ा, मस्जिद मेंबर का किरदार, वालिदैन का किरदार कितना अहम है? देखिए, इंसानी जो दिमाग है ये बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर समेटता है। जो भी देखता है वो भी दिमाग में जाता है, जो सुनता है वो भी दिमाग में जाता है, जिस तरह के मामलात होते हैं। तो इंसानी दिमाग बहुत सारे वाक़यात में बदनज़मी और एक बेहंगम किस्म की ज़िंदगी को मुसलसल देखता रहे और सुनता रहे और महसूस करता रहे तो बिलाखिर वो इस कैफियत में आ जाता है कि फिर मामूली सी बात भी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ये जिसे आप कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और एक तरह की, और बाज़ औक़ात लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सब की बुनियादी वजह क्या है? कोई एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहात मिलकर इंसानी दिमाग को बीमार करती हैं, और इसी वजह से सड़कों पर एक बेहंगम किस्म की ट्रैफिक चलती है। शहरों में, इदारों में लोग एक दूसरे के खिलाफ जो है वो सोचते रहते हैं, फिर उसके बारे में बातें करते हैं। तो नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा उसूल हमें अता किया है, और हम में से सभी लोग, मेरा गुमान यही है कि वो जानते भी हैं। आपने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दीगर अफराद जो हैं मुसलमान महफूज रहते हैं। अब देखिए, बहुत सारी खराबियाँ हमारी ज़बान की वजह से वजूद में आती हैं। ग़ीबत करना, हसद करना, इल्ज़ाम लगाना, तोहमतें लगाना, गाली देना, झगड़ा करना, ये सारी एक ज़बान की बीमारियों और उसकी खराबियों की एक लंबी फहरिस्त बन जाती है। इसके साथ साथ फिर हाथ, और हाथों के साथ किसी को मारना, किसी के साथ झगड़ा करना, किसी का माल छीन लेना, किसी की जान ख़त्म कर देना। तो गोया कि जान, माल और इज्जत को ख़राब करने के लिए ये दो बड़े बुनियादी वसीले बनते हैं, इंसान की ज़बान और इंसान का बर्दाश्त करना सीखना होगा, ये कहना है आपका। डॉक्टर हबीब आसिम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया और तफसीलन इस मामले पर रोशनी डाली। रिजवान, बिल्कुल हमारा मज़हब भी हमें यही दर्स देता है और इंसानियत का तकाजा भी यही है कि हम मोहब्बत और रवादारी के साथ रहें, आज़ादी के साथ रहें, और
दूसरों को बर्दाश्त करना सीखें। आगे बढ़ना आपको बताएं कि आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में इजाफे से जहां भारत और चीन समेत मुतअद्दिद मुल्कों में बिजली की फराहमी मुतासर हुई है, वहीं आए रोज़ ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। दूसरी जानिब मौसर हुकूमती पॉलिसीज़ के बायस पाकिस्तान में बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत बिला तातुल और अर्जा नरखों फराहम किए जा रहे हैं। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे राहील अंसार। कोयले की बैनुल अक़वामी कीमत में इजाफे के बाद सप्लाई में 50% कमी से भारत में तवानाई का बहरान पैदा हो गया है, जिससे भारत की मुतअद्दिद रियासतों में बिजली सप्लाई में तातुल आ गया है। 70% बिजली कोयले से पैदा करने वाले भारत में कोयले की किल्लत ने सनती सार्फिन को पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदने पर मजबूर कर दिया है। भारत में कोयले की स्पॉट की कीमतें गुज़श्ता 2 हफ्तों में 3 गुना बढ़कर 12 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। ये जो बहरान है, इसकी वजह से जो है आलमी मईशत में जो है एक महंगाई जैसे है तूफान बरपा हो रहा है, और जिसमें जो है आम आदमी को बहुत ज्यादा जो है इससे जो है महंगाई असरअंदाज होगी। इसके बरक्स पाकिस्तान में हुकूमत की मौसर और अवाम दोस्त पॉलिसियों की बदौलत दुनिया के मुकाबले में सस्ते ईंधन और तवानाई की बिला तातुल फराहमी जारी है। पाकिस्तान में अवाम न सिर्फ लोड शेडिंग की अफरीत से महफूज है, बल्कि बिजली पर सब्सिडी से उन पर महंगाई का बोझ भी कम किया जा रहा है। पाकिस्तान में बिजली की बिला तातुल और मुनासिब दामों फराहमी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती पॉलिसियों का महवर है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद 9 चोटियां सर करने का कौमी रिकॉर्ड कायम किया है। वो ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी कोहपैमा हैं। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी कोहपैमा सरबाज खान की, जिन्होंने हाल ही में नेपाल में वाक़ दुनिया की 7वीं बुलंद तरीन चोटी दावलागेरी सर करके ये एजाज़ अपने नाम कर लिया है। और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले सरबाज खान इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। सरबाज, आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने एक और चोटी सर कर ली है और रिकॉर्ड आपने अपने नाम कर लिया है। कौमी सतह पर पाकिस्तान में पहले ऐसे कोहपैमा हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा चोटियाँ सर कर ली हैं, 9 चोटियाँ सर कर चुके हैं। और सलमा, सरबाज के हवाले से मैं बताना चलूँ कि कुछ दिन पहले हमने खबर भी शामिल की थी कि इन्होंने अपने अज़्म का इज़हार किया था कि मैं जो 14 चोटियाँ हैं पूरी दुनिया में जो 8000 मीटर से बुलंद है वो सब सर करूँगा। सरबाज, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। कैसा महसूस हो रहा है आप 9 चोटियाँ सर करके और कौमी हीरो बन गए? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे मेरा जो ख्वाब था वो तकमील तक पहुँच रहा है, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। सरबाज, कितना कठिन रहा आपके लिए ये सफ़र जो अब तक का था और आगे जो बाकी है उसके लिए कितने एम्बिशियस हैं आप? कठिन तो जो क्लाइंबिंग है, माउंटेनियरिंग है, वो तो दुनिया का सबसे ख़तरनाक खेल माना जाता है। और मुश्किलात भी आई इस शॉर्ट टाइम में, क्योंकि मैंने 16-17 से मैंने स्टार्ट किया क्लाइंबिंग, और इस शॉर्ट अरसे में मैंने दुनिया के 9 पीक्स पे पाकिस्तान का परचम लहराया। और कंटिन्यूसली मेरा ये सक्सेस रहा। 9 अटेम्प्ट्स किसी भी 8000 जो मेरे 9 पीक्स है अबव 8000 मीटर के, उन पे हालात भी कुछ पीक्स पे मौसम की वजह से, और मेरा अपना एक दफ़ा मेरा अपना सेहत भी ख़राब रहा। अच्छा, कठिन तो रहे हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि कोई ऐसा वाक़या नहीं आया, पेश नहीं आया मेरे साथ, और एक के बाद दूसरा मेरा। सरबाज, 5 साल पहले आपने शुरू किया है ये कोहपैमाई का, जो भी आपका शौक़ है कोहपैमाई के हवाले से, इंस्पिरेशन कहाँ से आई? और 5 साल में सलमा, इट्स ए ह्यूज सक्सेस कि आप 5 साल में 9 चोटियाँ सर कर गए और आप जल्द अज जल्द 14 चोटियाँ सर करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ हुंज़ा आलियाबाद से है, और हुंज़ा आपको पता है कि बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में एक वैली है, और हमारी पाकिस्तान में हुंज़ा की एक तारीख भी रही है क्लाइंबिंग के हवाले से। नज़ीर साबिर हमारे लेजेंड जो कि, और अपना अशरफ अमान, समीना बेग, अमीर मेहदी, जो कि मैं ये पीक ही उसके लिए डेडिकेट किया। अमीर मेहदी जो कि 1954 में जो K2 का फर्स्ट एसेंट था उसमें उस टीम का हिस्सा था, और वो वहाँ पे एक उसका शिकार हुआ। इटालियंस की जो टीम थी उन्होंने उसको ऊपर लेके नहीं गए। तो ये मेरा स्पेशली अमीर मेहदी के लिए मेरा ये जो पीक था ये डेडिकेट किया मैंने, ये जो दावलागेरी, और मेरा जो 9th पीक था।
اچھا सरबाज, आपने मोहम्मद अली सतपारा साहब के साथ भी हाइकिंग की, उनके साथ एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वो भी हमारे कौमी हीरो थे और आज हमें मौजूद नहीं है, लेकिन हम उनको बहुत याद करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम जिस तरह से रोशन किया वो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और आपको लास्ट 5 ईयर्स, जैसे भी मेरे साथी एंकर ने बताया कि आपको हो चुके हैं ये करते हुए, नेक्स्ट कितना अर्सा लग सकता है पूरी 14 पीक्स को सर करने में? पहले तो मैं अली भाई के बारे में कुछ बताऊं, क्योंकि अली भाई के साथ मेरा पहला जो पीक था, मेरा मिशन समिट 14 का पहला पीक ही मैंने अली भाई के साथ किया था, माउंट नंगा पर्वत। तो अली भाई मेरा उस्ताद के तौर पे भी मैं उसको वो करता हूँ, तो बहुत बढ़िया रहा उसके साथ एक्सपीरियंस को। उसके साथ क्लाइंबिंग करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और बाकी दूसरा सवाल है, जो मेरा जो प्लान है वो इंशाल्लाह मैं 2023 तक मेरा जो मिशन समिट 14 है मैं कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ। अच्छा सरबाज, हम देखते हैं अब आप हैं या इससे पहले मोहम्मद अली सतपारा, फिर उनके साहिबजादे, जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, कामयाबी मिलती है, माउंटेन पे पहुंचते हैं, पाकिस्तानी परचम लहराते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस कोपैमा का ताल्लुक पाकिस्तान से आज इसने ये रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तान में इस हवाले से कोई स्कूल ट्रेनिंग का बाकायदा निज़ाम आप समझते हैं ये होना चाहिए, जिस तरह से ये खेल फ़रोग पा रहा है पाकिस्तान में? जहाँ तक हमारे पास इतने पहाड़ और जो 8000 मीटर से ऊपर के 5 पहाड़ और बेशुमार हमारे पास 7 और 6000 मीटर के पहाड़ है, इसके बावजूद भी हमारे पास स्कूल का नहीं होना और ट्रेनिंग इंटरनेशनल माउंटेन गाइड्स का नहीं होना, इसका बहरान ये मैं क्या बता सकता हूँ। मैं काफ़ी चैनल्स पे भी मैंने यही बात बार बार अभी दोहराना पड़ता है कि हमें अशद ज़रूरत है इंटरनेशनल माउंटेन गाइड्स की, जो नेपाल से आ रहे हैं। अभी फॉरेन कंट्री के लोग नेपाल से हमें जो फिक्सिंग के लिए ला रहे हैं, जो टेक्निकल उनके पास, क्योंकि वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड इंटरनेशनल माउंटेन गाइड्स है, तो हमें ज़रूरत है कि हमें इंटरनेशनल माउंटेन गाइड्स हमें यहाँ से पैदा करें पाकिस्तान से। तो इस हवाले से मेरा गवर्नमेंट से यही मेरा अपील है, मेरा गुजारिश है कि ये इस चीज़ पे जल्द से जल्द काम शुरू करे और इंटरनेशनल माउंटेन गाइड्स के ट्रेनिंग कम से कम 8 से 10 बंदों को यहाँ पे दिया जाए। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान में चूँकि जो हम बात कर रहे हैं कोपैमाई के हवाले से, हमारे साथ सरबाज खान मौजूद हैं जो कोपैमाई में कौमी हीरो बन चुके हैं, 9 चोटियाँ सर कर चुके हैं, उनसे बातचीत जारी रहेगी। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें, पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे अफगानिस्तान के हवाले से मोहम्मद सादिक का ये ट्वीट सामने आया। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में ज़ेर तालीम तमाम ऐसे अफ़गान स्टूडेंट्स जिनके पास पाकिस्तान में एडमिशन और वैलिड स्टडी वीज़ा मौजूद है, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में वो ज़ेर तालीम हैं, वो पाकिस्तान आ सकते हैं, बज़रिया रोड तुरखम के रास्ते वो पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को उनके मुस्तकबिल के हवाले से बेस्ट विशेस भी कहा है। पाकिस्तान में ज़ेर तालीम तमाम स्टडी वीज़ा होल्डर्स सफ़र कर सकते हैं तुरखम के रास्ते से। बहुत अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी तालीम को जारी रखना चाहते हैं। और नाजरीन, सरबाज खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, अपने एम्बिशंस के हवाले से वो बता चुके हैं। सरबाज, अभी तक आपने 9 पीक्स सर किए, बहुत बड़ी बात है। रिजवान और मैं बार बार हैरान होते हैं आपकी इन एफर्ट्स पे। सबसे जो मुश्किल पीक थी वो अभी तक की कौन सी थी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगा? वक्त तो ज़्यादा मुझे K2 पे लगा, क्योंकि मेरा मिशन है विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन और विदाउट शर्पा। तो आपको किसी भी बड़ी पीक, ख़ासकर एवरेस्ट, जो एवरेस्ट, K2, नंगा पर्वत, इस तरह के जो टफ़ जो पीक्स है उनके लिए आपको ज़्यादा टाइम लगाना होता है अपना बॉडी को उस मौसम के साथ, उस एलिवेशन के साथ अपने बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम तो मुझे K2 पे लगा, लेकिन सबसे ख़तरनाक और जो मुश्किलात ज़्यादा आई मुझे नेपाल में माउंट अन्नपूर्णा और अन्नपूर्णा पे ही आई। अच्छा, तो सरबाज, चूँकि कुछ ऐसी चोटियाँ जो ये 14 में से पाकिस्तान में है और कुछ दूसरे ममालिक में है, नेपाल में है, वहाँ पर ट्रैवल करना, फिर अपने अखराजात का इंतज़ाम करना, अपने खाने पीने का इंतज़ाम करना, और जो आपने अभी बताया है कि आपने ये मिशन बना रखा है कि आपने विदाउट सप्लीमेंट और विदाउट ऑक्सीजन आपने इनको सर करना है, ये तो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल कामरान भाई, रिजवान भाई सॉरी, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने यही मिशन स्टार्ट किया था कि मैं विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन इन पीक्स को मैं सबमिट करूंगा। अभी तक मेरे 7 पीक मैंने विदाउट ऑक्सीजन की है।
اور میں माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पे मुझे थोड़ा ज़्यादा ठंड की वजह से मुझे इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में फिर दोबारा से उनके ऊपर अटेम्प्ट करूँगा और विदाउट सप्लीमेंट ट्राई करूँगा। बहुत शुक्रिया सरबाज खान, आप आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, आपकी जर्नी बहुत सक्सेसफुल रहे, इसके लिए हम दुआ गो हैं, और आप इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, हमारी कौम का नाम रोशन करते रहें और हमारे लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी न्यूज़ लेकर आते रहें। और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने जो कि आपकी तरह कोपैमाई में आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ना सिर्फ कोपैमाई में बल्कि और दीगर खेल जो हैं उनमें पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आगे बात बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। नेशनल T20 टूर्नामेंट का फातेह कौन होगा, ये फैसला आज हो जाएगा। 7:30 से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा आपको मैच खैबर पख्तूनख्वा जो कि दिफाई चैंपियन है और इसके साथ साथ सेंट्रल पंजाब के माबैन फाइनल मैच खेला जाएगा नेशनल T20 का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। ये फाइनल मुकाबला रात 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाएंगे आपको बताते चलें कि फातेह टीम चमचमाती ट्रॉफी जीतने के साथ साथ 50 लाख रुपए भी इनाम की हकदार ठहरेगी। रनर्स अप के लिए 25 लाख रुपए का इनाम है। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू नौजवानों के लिए उम्मीद का पैगाम भी हैं। जुनून ग्रुप के सलमान अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म की खेलों में कामयाबियों और सियासी जदोजहद पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म तैयार की है। फिल्म के इजरा की तकरीब का अहवाल कराची से सुहेल जमाली बयान करेंगे। जुनून ग्रुप के बानी सलमान अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़िंदगी और जद्दोजहद पर मबनी दस्तावेजी फ़िल्म का इजरा कर दिया है। कराची प्रेस क्लब में तकरीब इजरा के मौके पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सलमान अहमद ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसका पहला हिस्सा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से किया गया इंटरव्यू इस फिल्म का मुहर्रिक बना। ये पहला एपिसोड है, इसमें अंदर मैं जानना चाह रहा था कि इमरान खान के दिल में क्या है, सोच में क्या है, तो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इसका नाम रखा। हम ऑस्ट्रेलिया गए, इंग्लैंड गए, मिडल ईस्ट गए, जहां पाकिस्तान टीम प्ले करी थी, और खान साहब की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सारी फुटेज उस वक्त से मैं जमा कर रहा हूँ, 30 साल से ज़्यादा हो गया। ये दस्तावेजी फिल्म वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करती है, जिसमें बतौर क्रिकेटर, समाजी कारकुन और बाद में सियासतदां इनकी जिद्दोजहद शामिल है। सलमान अहमद का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से रूहानी जमहूरियत की बात करना दरअसल ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी पैरवी में अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा है, जिससे वो मुतासिर हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो हमेशा ज़िक्र हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया, और फिर अल्लामा इकबाल। जब ये मैंने इंटरव्यू किया तो वो सारी चीज़ें मैंने सोच के इनसे सवालात पूछे। इस मौके पर क्रिकेट लेजेंड जावेद मियादाद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शख्सियत का अहम उनसर मुसलसल जिद्दोजहद और शिकस्त ना मानना है। उनमें ये एक चीज़ ज़रूर है कि वो गिव अप नहीं करते, हारते नहीं हैं, और वो कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो उनके अपनी और हमेशा पे ऑफ होती है। अगर ये जो भी चीज़ करेंगे लोगों के नज़दीक होगा कि यार ये क्या कर दिया, मगर इन दी एंड वो पे ऑफ होता है। सलमान अहमद ने बताया कि ये दस्तावेजी फ़िल्म गैर तिजारती बुनियाद पर बनाई गई है, जो नौजवानों में नया जज्बा पैदा करेगी और आने वाली नस्लें भी इससे इस्तेफादा कर सकेंगी। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात करेंगे उन मुसाफिरों की जो कि सफ़र करना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने चलास बाबूसर नारान शाहराह पर सफ़र के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया दामिर ने बाबूसर नारान शाहराह पर सफ़र पर आयद पाबंदी हटा दी है। मुसाफिर और सयाह दिन के औकात में बाबूसर नारान शाहराह पर सफ़र कर सकते हैं। शाहराह पर सुबह 9 से शाम 4 बजे तक गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रहेगी, जबकि शाम 4 से सुबह 9 बजे तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। बाबूसर नारान शाहराह पर बर्फबारी के दौरान हादसात के खतरात के पेश नज़र सफ़र के हवाले से शेड्यूल जारी किया गया है।
सफ़र करना चाहते हैं लेकिन साथ एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल रखिए क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आप ही की हिफाजत के पेश नज़र इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं, इसके लिए आपका ताउन भी ज़रूरी होता है। और अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं बाबू सर टॉप नारान की जानिब, तो एक बात ज़रूर याद रखिएगा, कोविड के वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट्स अपने पास ज़रूर रखिएगा ताकि किसी भी किस्म की आपको हजीमत का सामना न करना पड़े, किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त मुकम्मल हुआ। रिजवान अली अहमद और सलमा कौसर को टीम समेत इजाजत दीजिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।